You can see the meniscus shape here very nicely. One is C shape, inverted C shape, another is O shape. You can see this. The medial meniscus is C shape, the lateral meniscus is O shape. And there is a tear over here clearly showing. Tear. टूट गया है. Are you able to see? Hello? Yes, sir. So this tear is a very painful condition. And once there is a tear, it will lead to, see here is a tear, you can see, meniscus tear. दिख रहा है? This is the coronal section I am showing. Hello? Yes, sir. दिख रहा है, sir. You can see it very clearly over here. You can see it very clearly over here. So this tear is a clinical condition, but this is the natural, normal condition. So you can see very clearly the two menisca, lateral menisca and the medial menisca. Medial menisca is C shape, whereas lateral menisca is somewhat O shape. It is thick peripherally and flat centrally. It is also thick peripherally and flat centrally. The extension of the is called ligament of Rissberg, whereas the extension of the medial meniscus is called ligament of Humphrey, transverse ligament. So there is a difference between medial and lateral menisca. One is C-shaped cartilage. Medial menisca is C-shaped cartilage, whereas lateral menisca is O-shaped, circular shape. The medial menisca attached to the medial collateral ligament. You can see it here. This attaches to the medial menisca, attaches to the collateral ligament, medial collateral ligament. Here you can see. Medial menisca clearly attaches to the medial collateral ligament, whereas the lateral menisca attaches to the lateral collateral ligament. The medial menisca attaches to medial collateral ligament. The lateral menisca attaches to the lateral collateral ligament along with ligament tendon of popliteus. There is a tendon pass over here, popliteus. Here it is not written. I am going to show you another plate where you can see the popliteus muscle. Just wait. Just wait, I'm showing. Tendon of popliteus, are you able to see? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tendon of Yes, popliteus, sir. you can see the tendon Yes, of sir. popliteus. Yeah. So this tendon of popliteus is attached to the lateral menisca. The medial menisca is more prone to injury, whereas the lateral menisca is less prone to injury. क्यों बोलो? क्यों? Why? क्यों? ये तो हमने पढ़ा कि मेडियल मेनिस्का ज्यादा इंजरी को प्रोन होती है और लैटरल मेनिस्का कम होती है. क्यों होती है? कोई बता सकते हो? हेलो, बोल सकते हो? हाँ, लिगामेंटर मसल ज्यादा सप्लाई करते हैं लैटरल पार्ट को देन मीडियल पार्ट, और पटेला का लैटरल पार्ट ज्यादा बड़ा होता है ना, नी जॉइंट पटेला बना रहा है, और मीडियल पार्ट छोटा सा होता है इसमें, और पटेला लैटरल पे जो रेस्ट करती है. हाँ, करेक्ट, यू आर राइट. थैंक यू, you are right. So you can see the tendon of popliteus clearly over here. यहाँ पे एकदम क्लियर दिखा रहा है. ये देखो, दिख रहा है tendon of popliteus. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tendon Yes, of popliteus, which is attached to the lateral menisca and the lateral collateral ligament. This one is the fibular collateral ligament and the tendon of popliteus. Very interesting thing.
knee joint is really very interesting thing. And I tell you ना, patellar pad, infrapatellar pad of fat दिख रहा है यहाँ पे? हेलो? Yes sir, sir, दिख रहा है सर. Yes sir, दिख रहा है. वो तो दिख रहा है, लेकिन ये बता, what is the necessity? God has, why God has kept that infrapatellar pad of fat and infrapatellar bursa below the strong ligament? Tell me, किस कारण से रखा? To avoid friction or traction or tear. Exactly, to provide friction of the of this ligament against the bony surface, है ना? Correct, you are right. चलो तुम लोग अच्छा अच्छा समझते हो. So the function of the meniscus, क्या क्या function हो सकता है? First of all, it increases the collateral tension of the tibial condyle for better congruence with the femoral condyle. Properly fit करता है. It acts as a swab or lubricate the joint cavity. They act as a shock absorber to protect the articular cartilage during weight transmission. They adapt to varying curvature of the different part of the femoral condyle. So ये चीज तुम लोग को पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में. हेलो हेलो. Yes sir. ये पूछा जाएगा मेनिस्का का फंक्शन क्या क्या है. तुम लोग एक बार रिपीट कर दो, बोलो. No What sir, are the आप रिपीट function? कर दो सर, हमें नहीं उतना समझ में आ रहा. अरे increases the collateral tension of the tibial condyle for better congruence with the femoral condyle. Properly fitting करवाता है. Act as a swab to lubricate the joint cavity. Joint cavity को lubricate करता है और swab जैसा act करता है. Then it act as a shock absorber. Shock absorber देखा है कभी? गाड़ी का shock absorber देखा है? Spring. Yes sir. Yes sir, दिख रहा है. तो शॉक ऑब्जर्वर का प्रोटेक्शन देता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को ड्यूरिंग वेट ट्रांसमिशन. देन अडॉप्ट टू वेरिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द femoral condyle. These are the major function of the meniscus. तो यहाँ पे कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी है. डिसलोकेशन ऑफ द पैटेला मोस्टली occur laterally, most common in female because of their greater Q angle. अरे ये Q एंगल क्या है बोलो? lateral dislocation patella Q होगा. और एक Q एंगल क्या है? What is the meaning of Q? हाँ बोलो. वो हिप जो एंगल बन रहा है ये फीमर जो होता है. एग्जैक्टेशन है वो Q का टियर. हाँ, slightly separated for bucket and tier और transfer. ये कौन सा टियर है? तुम बोलो देना. This is the transfer bucket and tier. मेरा correct lateral because of the firm fixity to the tibial collateral ligament, greater excursion during the rotator ligament. तो ये इसमें ज्यादा इंजुरी होती है मेडियल मेनिस्का में, कारण वो ज्यादा फिक्सेशन होती है tibial collateral ligament के साथ. और सर ट्रांसफर टियर कौन सा होता है? हाँ तो ट्रांसफर टियर कैसे था?
ट्रांसवर्स टीयर का फिगर मेरे पास नहीं है बेटा, वो एक्चुअली मैं दिखाता हूँ, मैं खुद का अपियर कर रहा हूँ आपके सामने, मैं दिख रहा हूँ आप लोग को? नो सर, नहीं दिख रहा सर। नो सर, नहीं दिख रहे। इतना बड़ा हेड है Visible. यहाँ पे, वो ये देखो, देखा? सर No, नहीं दिख sir. रहा। नहीं सर, अभी तो किया मैंने, ये देखो, दिखा? सर अंधेरा है पूरा, सर नहीं नहीं दिख रहे सर। हाँ, आप दिख रहे हैं सर। पूरा दिखाई पड़ा, ये देखो। हाँ सर, आप पूरा अगर टीयर ऐसा होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स टीयर, अगर ऐसा टीयर होगा तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टीयर, समझे? ओके सर। हेलो हेलो, ओके सर एक Yes, और sir. बार रिपीट कीजिएगा। टीयर अगर ऐसा होगा तो दैट इज हॉरिजॉन्टल टीयर, ऐसा होगा तो वर्टिकल टीयर। ओके सर। अच्छा ये बताओ, ओके सर। यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल टीयर को हम लोग बकेट हैंडल टीयर कहेंगे ना वर्टिकल टीयर को कहेंगे? किसको कहेंगे बकेट हैंडल टीयर? ट्रांसवर्स को। हाँ सर हॉरिजॉन्टल को। ये हॉरिजॉन्टल जो है ट्रांसवर्स वही है बेटा, सेम थिंग, ठीक है? इज करेक्ट। So the lateral Yes, sir. meniscus is protected by the popliteus muscle because its medial fiber pulls the posterior horn of the meniscus backward so that it is not crossed between the articular surface. इसका साधारण आंसर है कि जो आपका lateral meniscus है वो popliteus muscle उसको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि popliteus muscle का जो medial fiber है वो हॉर्न का पीछे वाला हिस्सा, meniscus का पीछे वाला हिस्सा में अटैच होकर क्रॉस करता है। Pain on the medial rotation of the tibia on the femur indicate injury on the medial meniscus, while pain on the lateral rotation of the tibia on the femur indicate injury of the lateral meniscus. समझ गए? हेलो, यस सर आ रहा है। क्या समझे? Pain on the medial rotation of the tibia on the femur indicate injury of the medial meniscus. अगर मैं मेडियल रोटेशन टिबिया को जबरदस्ती करवाऊंगा पैर को मोड़ के, तो क्या इंजरी होगी? मेडियल मेनिस्कस भी तो इंजरी होगी ना। हेलो, हाँ, यस सर। अगर जबरदस्ती पैर को मोड़ूंगा लैटरल साइड पे तो लैटरल मेनिस्कस इंजरी होगी कि नहीं? यस सर। Yes, हाँ। sir. यस सर होगी। हाँ, यही चीज इसीलिए लिखा है। मैं गायब हुआ कि नहीं? Yes, sir. गायब हो गए सर। आप सर हुए सर। हाँ, उसके बाद 4 एक्सेसरी लिगामेंट होता है। क्या क्या नाम मैंने पूछा था, बोला था? ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड कोरोनरी लिगामेंट। बोलो क्या क्या है? हेलो, ओब्लिक मेरे साथ बोलो, ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, सर ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट, आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट, Arcuate पॉप्लिटियल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड कोरोनरी लिगामेंट। एंड कोरोनरी लिगामेंट। Oblique popliteal ligament क्या होती है? It is the extension of the tendon of semimembranosus muscle. It run upward laterally, superficial to the capsule to be attached to the intercondylar line of the femur. It is a strengthening, blending agent of the knee joint posteriorly. It is related to the popliteal artery pierced by medial genicular nerve, medial genicular vessels, middle genicular vessels, posterior division of the obturator nerve. देखो, oblique popliteal ligament में दिखाता हूँ आपको, semimembranosus कहाँ गया? oblique
हम्म, अरे यहाँ पे थोड़ा है, देखो ये जगह पे है, ये जो लिगामेंट लिखा है ना, हेलो हेलो, यस सर। ये यही है, यही है, ये देखो थोड़ा सा दिख रहा है, सेमी मेम्ब्रानोसस का एंड को देखो, दिखा? यस सर। नाम दिया नहीं है, यस यही है। यस मैं सर, और दिख रहा है। और एक जगह दिखाता हूँ, हाँ एक और जगह दिखाता हूँ, उसमें होगा, ठहरो। लाया था बुलेटिन, एक मिनट एक मिनट, ये देखो यहाँ पे है, देखो ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, देखो दिखा? हेलो, यस यस सर। सर, दिख रहा है। Yes, sir. यस सर, दिख रहा है हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ, ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, ये देखो, और इसी का जो ये एक्चुअली एक्सटेंशन होता है सेमी मेम्ब्रानोसस मसल, ये देखो सेमी मेम्ब्रानोसस यहाँ पे लिखा है ना, हेलो यस सर। Yes, हेलो, sir. दिख रहा है। उसी का एक्सटेंशन है, दिस इज कॉल्ड Yes, sir. ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट एक्चुअली नहीं है इसमें, क्योंकि आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट जो है ये गोटे बैंड होती है, स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ फिबुला के साथ अटैच होती है, और उससे एक एक्सटेंशन होता है आपका इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया पे, इसमें नहीं है वो पिक्चर। ओके, हेलो ओके। हेलो, हाँ इसमें नहीं है, but most important is the oblique popliteal ligament, which is the extension of the tendon of the semimembranosus muscle. It is pierced by medial genicular knot, medial genicular vessels, medial genicular vessels, and posterior division of the obturator nerve. Arcuate popliteal ligament is wise and fibrous band. The stem of the band is attached to the styloid process of the tibia. नीचे नीचे अटैच होती है, एकदम स्टाइलर प्रोसेस फिबुला देखा है कभी? हेलो यस हेलो, सर। Yes, sir. दिख रहा है. लोअर एंड बोले तो आपका एंकल जॉइंट तो कहा गया? अभी तुम लोग तो ब्रेन में मेरे को क्वेश्चन पूछे थे, सर ये तो नी जॉइंट का मैटर है, ये एंकल जॉइंट यहाँ पे क्या आ गया? नहीं है, क्योंकि जो बाहर का फेसिया होता है ना, बाहर फेसिया 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 Yes, फेसिया sir. ऑफ द डीप फेसिया ऑफ द लेग, लेग का डीप फेसिया होता नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. होता है. तो उसी का Yes, sir. एक पार्ट होती है आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, वाइज जैसा दिखता है, फाइब्रस का है। मैं कभी दिखा दूंगा डिसेक्शन हॉल में, ओके? Okay, जो sir. कि उसका Yes, जो sir. पोस्टेरियर लिम्ब होती है वो टेंडन ऑफ द पॉप्लिटियस के ऊपर आर्चिंग होती है, कभी कभी दिखा दूंगा आप लोगों को। ट्रांसवर्स लिगामेंट, इट एक्सटेंड ट्रांसवर्सली anterior end of the medial lateral meniscus present in 40% of individual। ये देखो, ये जगह को कहते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये जगह को, ये देख रहा है ट्रांसवर्स लिगामेंट, दिखा? Yes, sir. Yes, दिख sir, रहा है. दिखा। Yes, हेलो sir. हेलो, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। सुनाई दे रहा है. हाँ ट्रांसवर्स, हाँ ये सब लोगों में नहीं रहता है, 40% लोगों में रहता है। हाँ
coronary ligament is a part of the fibrous capsule Sir, which excuse provides me, sir. attachment Sir, to the peripheral margin transverse. of the medial and lateral menisci. हाँ हेलो सर ये पूछ रही थी ट्रांसवर्स लिगामेंट अगर 40% लोगों में ही पाया जाता है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन नहीं होगा क्या? नहीं 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 नहीं, it is a anatomically abnormality, it is not an abnormality. नहीं है तो Okay, नहीं sir. है, बस सिंपल, Okay, ठीक और है। होने से कोई बेनिफिट है? ठीक है सर। कोई बेनिफिट नहीं है, इसको अगर रहेगा तो ये क्या करेगा, दोनों मेनिस्का को प्रॉपर्ली फिट करके रखेगा, इतना काम। वैसे भी तो फिट है ना, क्योंकि बाहर साइड से जो आपका कोलैटरल लिगामेंट उसको प्रॉपर प्लेस में रखता है, ठीक है। इट्स एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट कुछ लोगों में रहता है, कुछ लोगों में नहीं रहता है, बस सिंपल, ठीक है। ओके। हाँ, वर्सा, वर्सा बोले तो ए बैग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन which is filled with synovial fluid which provides smoothness for the tendon friction and the joint movement. वर्सा around knee joint are 12, 12 वर्सा रहता है उसमें, 12 टोटल, 4 anterior, 3 lateral, 3 medial, 2 posterior, इस करके ऐसा करके 12 टोटल। वो कितना हुआ, 4 anterior, 3 lateral, 3 medial and 2 posterior. Anterior bursa you can see, these are the anterior bursa, दिख रहा है। सुप्रापैटुलर bursa को anterior bursa कहा जाता है। हाँ, the subcutaneous prepatellar bursa and the suprapatellar bursa, they are called as the anterior bursa, bursa of the housemaid's knee. housemaid बोले तो क्या है बोलो? नौकरानी। हाँ, वो अगर घर को पोछा लगाएगी तो बार बार उसी वर्षा के ऊपर वो बैठेगी नील डाउन होके, तो उससे क्या होगा, वो बर्साइटिस होती है। बर्साइटिस होके पैर में इतना बड़ा बुब्बू जैसा दिखेगा, पूरा डुम्बा होके दिखेगा नी में, समझ गए? हेलो, फिर कैसा दिखता है? डुम्बा डुम्बा, ये जैसा क्या कहो, सर में एक बड़ा ट्यूमर जैसा दिखता है, वो कभी दिखा देंगे आप लोगों को, ठहरो दिखाता हूँ, रुको रुको, फिगर दिखाता हूँ, जरा रुको। सर आवाज नहीं आ रही, एक मिनट रुको यार, रुको रुक जाओ, दिखा रहा हूँ बेटा, रुकोगे तो जरा। निकल रहा हूं ना, एक मिनट रुको। सर आराम से दिखाइए। अरे कहाँ दिखाया, दिखाया नहीं, तुम बोल रहे हो दिखाया, रुको जरा। ए देखो, दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा क्या, कितना बड़ा वर्षा देखो। सर वो एक बार सर पॉइंट करके दिखा दीजिए सर। वो थिकेंड जैसा जो लिखा हुआ है वही ना? ये देखो, अभी दिखाई पड़ा? नहीं सर, वो नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है सर, सर नहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है सर। अभी रुको रे, रुको रुको, चढ़ गया है, मैं समझा, रुको, ये देखो, दिखा? ठीक, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर। देखा?
हाँ यस एक सर, मिनट। नींबू जैसा तो दिख रहा है, वाइट वाइट कलर का। नींबू जैसा दिखता है, नीम के ऊपर एक नींबू जैसा। एक और दिखाता हूँ, रुको। एक मिनट। हाँ सर, रुक रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, रुको जरा। ये देखो, देखे? हाउसमेट नहीं देखे? यस सर, दिख गया, बहुत बड़ा नींबू जैसा दिख रहा है ये तो। हाँ, देखा अभी? यस सर। हेलो। हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, इसको मैंने 3 बार ऑपरेशन किया था। ये देखा कितना सुंदर फिगर, देखो अभी दिखा? यस सर। यस सर, दिखा। हाँ, मैंने ये ऑपरेशन 2 बार की थी लाइफ में। हाउसमेट्स नहीं निकाला था। मिनिमम सर आपने 40 किया था? ml या 50 ml। हाँ, मैंने बहुत पहले की थी, ऑपरेशन किया था, 1-2 बार किया था। और असिस्ट भी बहुत बार किया है ऐसे कंडीशन में। यूजुअली क्या होती है, हाउसमेट्स सर नहीं, कहाँ पे किया था सर? सर्जन कभी कभी रिमूव। बहुत पहले बेटा, 2004 की बात है, बहुत छोटा था उस समय। अभी तो सब छोड़ जब चुका तो हूँ, सर अमीर प्रोफेसर बहुत हुआ हूँ। छोटे। और पहले तुम जन्म नहीं हुए होंगे, उस समय की बात कर रहा हूँ। सर जन्म तो सर हो हाँ गए थे। सर, हम तो केसेस। छोटे छोटे से ही थे, हम सर बस पैदा हुए हुए थे छोटे छोटे से तब तो। नहीं नहीं, पहले क्या होता था ना, आजकल जो ये आ गया ना, ये जो हाथ में पकड़ के मशीनरी फ्लोर वॉश आ गया। पहले फ्लोर वॉश कपड़े में पोछा मारता था भाई आके। आजकल तो वो नहीं ना, सब हाथ में पकड़ के सब घिसा देते हैं ऐसे। देख रहे हो, सब आ गया है आजकल, मशीनरी आ यस गया। सर। पहले मशीनरी नहीं था, इसीलिए ये बीमारी होती थी बहुत। एनीवे, हाउसमेट नी जो है वो स्किन ऑफ द पैटेला फ्रंट पे रहता है, लोअर हाफ ऑफ द पैटेला पे रहता है, कभी कभी अपर हाफ ऑफ द लिगामेंट ऑफ पैटेली और टिबियल ट्यूबरोसिटी के बीच रहता है। और इंफ्रा पैटेलर वर्सा पैटेला के नीचे स्किन लोअर पार्ट ऑफ द टिबियल ट्यूबरोसिटी में भी मिलती है। एक और है डीप इंफ्रा पैटेलर वर्सा, बहुत पेनफुल। ये अगर हुआ तो उसके आंख से आंसू बहेगा, बहुत पेनफुल है। लिगामेंट ऑफ पैटेली और टिबियल ट्यूबरोसिटी के बीच रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है सुप्रा पैटेलर वर्साटी, बिटवीन द anterior surface, lower part, femur and deeper surface of the quadriceps femoris। समझ गए? हेलो। यस सर, समझ गए। यस सर। हाँ, एंटेरियर वर्सा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने तुम लोग को हाउसमेट्स नहीं याद रखो। सो ये देखो जितने सारे एंटेरियर वर्सा दिखाया गया है, सुप्रा पैटेलर, इंफ्रा पैटेलर, डीप इंफ्रा पैटेलर, प्री पैटेलर। अच्छा, इसको कौन सी वर्षा कहेंगे? सेमी मेम्ब्रेनस वर्सा। हाँ, एक तरह से ठीक है, नाक को सीधा ना छू के उल्टा छू। इसको पहले तो पोस्टेरियर वर्षा तो बोलो। Posterior bursa in the ये सर heel posterior fossa bursa। behind the posterior side of knee joint and posterior side of thigh. हाँ, तो यहाँ पे लिखा है इसीलिए पढ़ के बोल दिया सेमी मेम्ब्रेनस वर्षा, कोई बात नहीं। लैटरल वर्षा कहाँ पे हो सकता है, सोचो जरा। लेटरल साइड होगा। लाइन है जो आपका बाइसेप्स फीमोरिस दोनों साइड में आएगा, और आपका कोलैटरल लिगामेंट रहेगा ना, उसके नीचे वर्षा होती है, बट उसमें बॉर्साइटिस नहीं होती। हेलो सर, सर मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा चला गया था सर, जिसके के कारण मैं मीटिंग से आउट हो गई थी सर। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए सर। लैटरल सर वर्षा, प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। लैटरल वर्षा
ये देखो सेमी मेम्ब्रेनस वर्सा और पोस्टेरियर वर्सा, ये है सुप्रा पैटेलर वर्सा, दिस इज प्री पैटेलर वर्सा, इंफ्रा पैटेलर वर्सा, डीप इंफ्रा पैटेलर वर्सा। समझे? हेलो, जब डीप इंफ्रा सब वो है सर जो यहाँ पे एरो दिखा रहे हैं। हेलो, डीप इंफ्रा पैटेलर वर्सा, डीप, यस सर, समझ गए सर, समझ गए। हेलो, समझे? यस सर, समझ गए। यस सर, हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। यस सर, तो सर समझ। लैटरल वर्सा जो आप लोगों का है वो यूजुअली जो कोलैटरल लिगामेंट है, मेडियल कोलैटरल लिगामेंट, फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट और टेंडन ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस, उसके अंदर रहता है। यहाँ पे लिखा है ना, वर्सा बिटवीन द फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस, है ना? हेलो, यस सर। कभी कभी टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस के नीचे रहेगा, कभी कभी बाइसेप्स फीमोरिस टेंडन के नीचे रहता है। But the bursa between the tendon of popliteus, lateral condyle of the femur, this bursa is a really synovial tube around the tendon of popliteus, so it communicates the joint cavity. अर्थात ये पूरा जो टेंडन है popliteus को पूरा एक ट्यूब जैसा कवर करता है, उसको popliteal bursa भी कहते हैं, और वो सीधा जाता है जॉइंट कैविटी के अंदर, नी जॉइंट कैविटी के अंदर। मेडियल वर्सा जो है, दिस वर्सा सेपरेट द टेंडन ऑफ sartorius, gracilis and semitendinosus each other also from the tibial collateral ligament, that is called bursa anserine. The bursa between the tendon of semimembranosus, medial collateral ligament, the tendon of the semimembranosus, medial border of the tibia, it communicates with the joint cavity. sartorius, gracilis, semitendinosus, ये तीनों कौन सा मसल है? हार्श मसल है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हार्श आपकी मसल है। आवाज नहीं आ रही थी सर। sartorius, semitendinosus, gracialis, ये तीनों का नाम कौन सा मसल है? मैंने कल बोला था। हार्श मसल है। नहीं, गायरोप, गायरोप, गायरो गायरोप मसल। गायरो। तो उसका इंसर्शन कौन सा शेप का होती है? इंसर्शन कौन सा शेप का होती है? मैं दिखा रहा हूं हाथ में, कंप्यूटर का जो, अरे ये कौन सा शेप? ये कौन सा शेप दिखा? है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद इज ए प्लेयर ऑफ व्हिच गेम? हॉकी, हॉकी। तो इसका इंसर्शन कौन सा होगा? बोलो। अरे हॉकी स्टिक जैसा दिखता नहीं है इंसर्शन? हेलो, यस सर, हॉकी स्टिक कैसा दिखता है? यस सर, यस सर। हाँ, हॉकी स्टिक मैनर इंसर्शन कहते हैं उसको, और उसके अंदर जो वर्सा रहेगा उसको कहेंगे वर्सा आंसेरिना, और ये सेपरेट करता है ये तीनों मसल को टिबियल कोलाटरल लिगामेंट से। द वर्सा, दिस वर्सा आल्सो सेपरेट सेमीमेम्ब्रेनोसस फ्रॉम द टिबियल कोलाटरल लिगामेंट, और ये सेमी मेम्ब्रेनोसस को मेडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया से भी अलग कर देता है। देन पोस्टेरियर वर्सा, क्या है पोस्टेरियर वर्सा? लेटरल दो हेड ऑफ वर्सा रहता है, गैस्ट्रोनेमिस लीड एक्सिल ऑफ जॉइंट के बीच का। हाँ, और अच्छा ठहरो ठहरो, सेमी मेम्ब्रेनोसस वर्सा को अगर मैं पोस्टेरियर वर्सा को बोला था, वो भी क्यों इसमें इंक्लूड नहीं होगी?
ये जो वर्षा है ये भी है वो भी है, दोनों है बेटा पोस्टेरियर वर्षा। गैस्ट्रोनिमस का 2 हेड, उसके चारों तरफ जो वर्षा, सेमी मेम्ब्रेनोसस का हेड जो कि पोस्टेरियर कोलैटरल लिगामेंट से अलग होते हैं, वो भी ऑल आर कॉल्ड पोस्टेरियर वर्षा। समझे? यस सर। हेलो? यस सर, समझ यस सर। रहे हैं। उस पोस्टेरियर वर्षा जो कि मेडियल लैटरल एंड ऑफ गैस्ट्रोनिमस के चारों तरफ रहता है, उसको कौन सा वर्षा कहेंगे? ब्रॉडिस वर्षा। कौन सा? हेलो? ब्रॉडिस। ब्रॉडिस, ब्रॉडिस। हेलो? ब्रॉडिस वर्षा। बॉडी तो ये जो वर्षा अराउंड द नी जॉइंट, ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखो। वर्षा कौन अराउंड सा? नी जॉइंट, वर्षा अराउंड नी जॉइंट इज ए 10 मार्क क्वेश्चन। ओके सर। तो याद रखना केयरफुली। ओके? ये कभी कभी आता है यूनिवर्सिटी Yes, एग्जाम sir. में भी आता है। हाँ, इट ऑल्सो कम्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑल्सो। अच्छा, तीनों शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा आता है कभी कभी। वो हाउसमेट नहीं, क्लर्जीमैन नहीं, वर्षा आंसर ही ना, वर्षा ब्रॉडिस वर्षा, इसमें से कोई एक डाल देगा। याद रहेगा? यस सर। हेलो? हाँ, हाँ याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. हाउसमेट नहीं पढ़ गए, हाउसमेट नहीं समझ गए तुम लोग? हेलो? हाँ सर, बर्साइटिस होगा प्री पेटिलर बर्सा का। हाँ, क्लर्जीमैन नहीं क्या है? व्हाट इज क्लर्जीमैन नहीं? इंफ्रा पेटिलर बर्सा का इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज क्लर्जीमैन नहीं? हेलो? इन्फ्लामेशन। और ये ज्यादातर पृष्ठ में होती है। जो आप लोगों का जो क्रिश्चियन क्या कहते हैं, वो जो गिरजा घर होता है ना क्रिश्चियन वालों का, क्या कहते हैं उसको? चर्च। चर्च। चर्च का चर्च। चर्च में कभी शादी देखा है? हेलो? हाँ, नहीं टीवी में देखा है, हेलो? टीवी में देखा है। यस सर, देखा है। नहीं चर्च देखा में रियल सर। में भी। सर देखा। चर्च में शादी नहीं देखा? टीवी पर देखा है। सर मैंने देखा है। अरे ये जो मॉर्ग पिक्चर में सर आप अमिताभ दिखा बच्चन दीजिए अभी करता है फोन। ना, अरे हाँ सर। मॉर्ग पिक्चर में अमिताभ बच्चन अमृता सिंह को शादी करता है ना। हेलो? तो वो तो क्या है, चर्च में जाना यस नहीं। सर। तो वो लोग चर्च में जाके क्या करते हैं? सर रिंग पहनाते और क्या। रिंग तो पहनाएगा लड़की, और तो रिंग तो पहनाना पड़ेगा। लेकिन सर जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होता है वो क्या करता है? सर वो कुछ I'm- क्या कहते हैं, प्रार्थना करता है। सर प्रे करता है। आखिरी में बोलता है आई में अनाउंस। करता है, वो जब भी प्रे करता है वो खड़ा होकर प्रे करता है ना नील डाउन होकर प्रे करता है? खड़ा होके करता है। अरे गधे, खड़ा नहीं, नील डाउन होती है, समझे? नील डाउन होके करती है। उसी समय क्या होती है, इंफ्रापेटलर वर्षा होती है। लेकिन ये जो काम वाली बाई जो सबसे बदमाश होती है, उसका नजर घर का इर्द गिर्द में रहता है, उसका सुप्रापेटलर वर्षा अफेक्ट होती है और प्री पेटलर वर्षा। अभी समझ गए? यस हेलो? सर। यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, प्रीस्ट को छोड़ के, क्रिश्चियन प्रीस्ट को छोड़ के क्लर्जीमैन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लर्जीमैन? पता नहीं सर। तो क्लर्जीमैन क्या है?
कोई भी रिलीजियस लीडर होता है उसको क्लर्जी मैन कहते हैं, कोई भी पंडित सब। हाँ, वो फादरी, मिनिस्टर, मेल प्रीस्ट, मतलब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का रहेगा। और चाइनीज में भी वैसी तो पूजा करता है वो समवट। हेलो हाँ सर। हेलो, हाँ अरे हेलो सर। नहीं नहीं, अरे वो तो हो गया क्रिश्चियन प्रीस्ट, ये क्लर्जीमैन कौन है? लीडर, रिलीजियस लीडर इन क्रिश्चियन हाँ? कम्युनिटी। रिलीजियस लीडर जो रहेगा वो हेलो? मिनिस्टर भी रह सकता है। अब हाँ, एक तरह से ठीक है। एक्चुअली क्लर्जीमैन जो लोग होते हैं वो लोग कोयले के खान और हीरो के खान में काम करते हैं। कोयला जानते हो? कोयला, हेलो कोल। हेलो, हाँ कोल कोल, कोल। उसी में काम करने वाले खान के लोगों को क्लर्जीमैन कहते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड लिखा है रूफर्स एंड फ्लोर टाइलर्स, ये क्या होती है? क्या है ये? नीचे बैठ के जो टाइल वाइल लगाते हैं वो। एग्जैक्टली, ये लोगों का पूरा पेटुलर बर्साइटिस होती है, समझे ना? हेलो, यस सर। Becker's cyst, popliteal cyst is the chronic inflammation of the bursa deep to the semimembranosus, may present in cystic swelling above the fluid-filled sac of synovial membrane in the medial part of the popliteal fossa called Becker's cyst. कभी देखा है Becker's cyst? हेलो हेलो, नो सर। नो सर। अब मैंने किया है बेकर सिस्ट, मैंने भी की है बहुत पहले, 2-3 बार देखा है हॉस्पिटल में जाके। असिस्ट भी किया है बेकर सिस्ट। इतना बड़ा होगा, मिनिमम 50 ग्राम का, 60 ग्राम का निकलता है बेकर सिस्ट। सेमी मेम्ब्रेनस के पीछे। नाउ रिलेशन ऑफ द नी जॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। हेलो, यस ये सर। डायग्राम 5 मार्क डायग्राम आएगा, क्वेश्चन आप लोगों को याद रखो। अभी बोलो, व्हाट इज द एंटेरियर रिलेशन? प्री पटेलर बर्सा। बोलो, वेरी गुड, प्री पैटेलर वर्सा। और क्या है? लिगामेंटम पटेली। लिगामेंटम पैटेली, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, प्री पैटेलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व एंड प्री पैटेलर साइनोवियल वर्सा। एंटेरोमेडियली क्या रिलेशन होगी? मीडियल पटेलर रेटिना। रेटिनाकुलम। अरे ये जगह को रेटिनाकुलम कहते हैं रे, ये जगह को रेडियल पैटेलर रेटिनाकुलम। एंटेरोलैटरली क्या होगा? लैटरल पैटेलर Lateral patellar reticulum and iliotibial tract. वेरी गुड। पोस्टेरियर रिलेशन में क्या क्या होगी? Popliteal Posterior- vessels, tibial nerve, tibial nerve, oblique popliteal ligament, और क्या होगी? लैटरल मेडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनिमस भी तो होगी ना? सेमी मेम्ब्रेनोसिस। सेमी मेम्ब्रेनोसिस भी होगी, प्लांटारिस भी होगी, कॉमन पेरोनियल नर्व भी होगा, टेंडन ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस लैटरल रिलेशन में आएगी। ठीक है? हेलो, हाँ yes सर। sir, yes sir. लैटरली Yes, sir. क्या रिलेशन होगी? लैटरल रिलेशन बोलो, एंटेरो लैटरल रिलेशन देखिए। ट्रांसवर्स लिगामेंट, नहीं, टेंडन पोप्लिटियस और फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। एंटीरियर वेरी गुड। लैटरल। एंटेरो नहीं रे, पोस्टरोलैटरल है, एंटेरोलैटरल कुछ नहीं रहता। पोस्टरोमेडियल रिलेशन क्या होगी? Sir, upper देखिए part बोलो। of sarcosis, semimembranaceous and semitendinous. Sir, semimembranaceous, semitendinous, and upper part of sarcosis.
नहीं नहीं नहीं, सार्टोरियस नहीं होगा, यहाँ पे होगा साफिनस नर्व, साफिनस ब्रेन, ग्रेट साफिनस ब्रेन, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रानोसस, ग्रेसियलिस, Semi-membranous ये and इतना lower होगा। part of medial head हाँ of the corpusculus. हाँ, ये सब आएगा आपका पोस्टरोमीडियल रिलेशन। पोस्टरोलैटरल में टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस आएगी, ट्यूबुलर कोलैटरल लिगामेंट आएगा, टेंडन ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस आएगा। समझे ना? Yes, हाँ sir. सर। हेलो, ये Yes, sir. फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, Yes, sir. बता के रखता हूँ मैं। हेलो, हाँ सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ये दिस इज कॉल्ड ब्लड सप्लाई टू द नी जॉइंट। It is supplied by genicular descending artery, superior medial genicular artery, inferior medial genicular artery, anterior tibial recurrent artery, inferior lateral genicular artery, superior lateral genicular artery, descending branch of the lateral circumflex femoral artery। और इसके बावजूद पॉप्लिटियल आर्टरी का और 5 ब्रांच, कुल मिला के 12-13 आर्टरी जॉइंट को सप्लाई करता है। 5 आर्ट्रियल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द पॉप्लिटियल आर्टरी, उसके बाद ये सब याद हो जाएगा। हेलो, यस सर, यस सर। बोलो एक बार बोलो, क्या क्या बोला मैं? Sir, आपने जेनिकुलर आर्टरी, वेरी गुड। उसके बाद 5 जेनिकुलर Sir, ब्रांच ऑफ द पॉप्लिटियल anterior आर्टरी, recurrent artery. tibial recurrent artery, और एक है, और एक डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लैटरल सर्कमफ्लेक्स femoral artery, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और 2 एंटेरियर tibial artery का 2 रिकरेंट ब्रांच। फिबुलर ब्रांच हाँ होगा, मेडियल जेनिकुलर, लैटरल जेनिकुलर, सुपरमेडियल सुपरलैटरल, इंफरामेडियल इंफरालैटरल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद पोस्टेरियर tibial आर्टरी का एक सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच, कुल मिला के 12-13 आर्टरी इसको सप्लाई करती है। समझे? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. Yes, एक sir. बार Yes, sir. एक बार टोटल बोलो कितना हुआ? 5 हुआ Yes, पॉप्लिटियल sir. का, जेनिकुलर का हुआ Sir, 4। superior lateral genicular artery. Superior. सुनो तो ऐसे Yes, हिसाब sir. नहीं होता। 5 होता है जेनिकुलर ब्रांच पॉप्लिटियल का, 5, और वो जो फीमोरल आर्टरी का ब्रांच है 6, और लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल ब्रांच डिसेंडिंग ब्रांच 7, 4 ब्रांच होता है जेनिकुलर ब्रांच, सुपरमेडियल सुपरलैटरल, इंफ्रामेडियल इंफ्रालैटरल 11, और सर्कमफ्लेक्स फीमोरल पोस्टीरियर tibial artery का 12, और 2 रिकरेंट ब्रांच एंटीरियर tibial artery, कुल मिलाकर 14 ब्रांच सप्लाई करती है। समझे? हेलो, 14 ब्रांचेस नी जॉइंट का ब्लड सप्लाई। Yes, sir. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर इतने सारे हाई वास्कुलरिटी है, अगर वहां पे ट्रॉमा होती है नी जॉइंट को, क्या बीमारी होगी? अगर नी जॉइंट को घात लगता है तो क्या होगा? 3 चीजें होगी, क्या क्या? बर्साइटिस हो सकता है, बहुत में बहुत नहीं, लैटरल पोर्शन वीक होता है तो। अरे नहीं, हीमोआर्थ्रोसिस, पायोआर्थ्रोसिस एंड हाइड्रोआर्थ्रोसिस। क्या क्या बोला मैं? बोलो। हाइड्रो हीमोआर्थ्रोसिस बोलो, हीमोआर्थ्रोसिस, पायोआर्थ्रोसिस, पायो पायोआर्थ्रोसिस और हाइड्रो हाइड्रोआर्थ्रोसिस। अर्थात उसी जॉइंट के अंदर ब्लड जमा हो जाएगा, उसी जॉइंट के अंदर पानी जमा हो जाएगा, उसी जॉइंट के अंदर पस जमा हो जाएगा। समझे अभी? यस हेलो, सर। Yes, sir. Sir, मैं जब भी sir, practice broken करता of था ना, patella भी होगा ना? हाँ, बोन पीस उसमें टूट जाता है, कितने सारे बोन का फ्रैगमेंट होती है, उसका कुछ हिसाब नहीं है। मैंने लाइफ में बहुत सारे केसेस इसको भी ऑपरेशन किए, कितने सारे एस्पेक्ट। तुम लोग देखो, तुम लोग जब पेरीफेरी में प्रैक्टिस करोगे ना एमबीबीएस होने के बाद,
ऐसे केसेस बहुत आएंगे तुम लोग के पास, मैक्सिमम केसेस इसी का आएगा। एक्सीडेंट होके नील इतना बड़ा करके आएंगे, लाल कलर एकदम ब्लैक कलर होके आएगा, तो उसमें अगर निडिल डाल दोगे ना मिनिमम आधा लीटर ब्लड बाहर आता है हीमोआर्थ्रोसिस में। हेलो यस सर। सर यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल जमा हो जाएंगे वो भी इसी में आती है की कंडीशन? हाँ आता है आता है आता है। तो गाउट कहते हैं। गाउट अलग बीमारी होती है, गाउट अलग है, गाउट इसके साथ कोई संबंध नहीं। गाउट में पढ़ाऊंगा कभी बाद में, ठीक है। याद रखो हीमोआर्थ्रोसिस तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जो जमा हो रहा है वो अलग है, वो अलग है, इसके साथ नहीं। वो सेप्टिक आर्थराइटिस है, वो अलग बीमारी है, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। नी जॉइंट का आर्थराइटिस अलग है, ठीक है। हेलो यस सर। यस सर। क्या क्या बोला मैं? एक्सीडेंटल ट्रॉमेटिक, क्या क्या ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस 3 तरह का होता है, क्या क्या है? सर आवाज नहीं आ रहा। अरे मैं ये कह रहा हूँ ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस जो है 3 तरह का है, क्या क्या है? हीमो पायो और हाइड्रो। हाँ वेरी गुड। नर्व सप्लाई जो है फीमोरल नर्व, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड ऑपरेटर नर्व, ये चारों नर्व सब जगह सप्लाई करता है। मूवमेंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मेडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। मेडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन को कॉन्जंक्ट रोटेशन कहते हैं। इसी के वजह से इसको कहा जाता है मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। समझे? हेलो यस सर। यस सर। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है मेनिस्को-femoral compartment of the joint. Flexion is the angle between posterior thigh and leg decrease. Extension, the angle between posterior part of the thigh and leg increase. The movement of the flexion and extension at knee differ from ordinary hinge movement in following 2 ways. फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होती है वो हिंज मूवमेंट से 2 तरह से अलग है। कैसे? नंबर 1, ट्रांसवर्स एक्सिस around which this movement takes place is not fixed. During flexion, the axis moves forward and upward. In the extension, the axis moves backward and downward. याद रखना इसको। During this movement, there is auto rotation of the knee joint, namely medial rotation of the femur during last 30 degree of extension and lateral rotation of the femur during initial stage of flexion. When foot is off the ground, tibia rotates instead of femur, but in opposite direction. Medial lateral rotation takes place in lower meniscotibial compartment. यहाँ पे meniscotibial compartment, meniscofemoral compartment कौन सा है बोलो? मैंने एक फिगर दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पे कौन सा है मेनिस्कोटिबियल कंपार्टमेंट, कौन सा है मेनिस्कोफीमोरल कंपार्टमेंट? बोलो। ये जगह देख रहे हो? हेलो, देख रहे हैं। ये जगह का नाम क्या है? मेनिस्कोटिबियल कंपार्टमेंट। अरे टिबिया गधी, ये देख है रहे तो ये कौन सा कंपार्टमेंट होगा? लैटरल मैंने से बोला। लैटरल लैटरल। ओहो, अरे ये फीमर है तो ये कौन सा कंपार्टमेंट होगी? मेनिस्कोफीमोरल कंपार्टमेंट। और ये कौन सी कंपार्टमेंट होगी? मेनिस्कोटिबियल कंपार्टमेंट। वेरी गुड। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? हाँ।
सर नी जॉइंट से अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा था क्या क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर पूछा नहीं था, तुम जो लोग के हमारे टाइम आ सीनियर ने दिया सकता था? था। नहीं उन लोग को नहीं आया था, ओके सर। शायद तुम लोगों में रिपीट हो जाए। उनका रिजल्ट आ गया सर? हाँ उन लोग का रिजल्ट आया है, 82 बच्चे फेल है। कितने? 82। कितने? सर 82 फेल है। 82। इतने सारे? कितने हाँ पास हुए सर? 70 बच्चे इधर पास वो तो हुए हैं, कौन है, कहाँ 50% रिजल्ट आया है। 50% से लेस 46-47%। तो सर इतने बच्चे फेल कैसे हो गए ये सब? फिजियोलॉजी में बहुत बच्चे फेल हुए हैं। प्रैक्टिकल में फेल नहीं हुए, थ्योरी में फेल हुए सब। ओह, तो अब इनका फिर से पेपर होगा? हाँ होगा, और क्या करेंगे आगे तो। थ्योरी में फेल हुए तो करना पड़ेगा ना। हेलो, यस सर। ये सर। इतना मुंह सूखा क्यों रहे हो? डरने की कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। इतना बेकार रिजल्ट आया है। बेकार तो आया है, अब क्या करेंगे? थ्योरी तो सर पास हम करेगा। अपना सोच रहे थे क्या बनेगा। हाँ? वही तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा क्या होगा। सर कॉलेज खुलवाने सर में आप बुला लो। हाँ? सर आप बताइए, सर आप कुछ बताइए ना कैसे नंबर हम लोग अपना गेन करें। सर हाँ। आप ये बता के डरा दिए सर। क्या बोलूं? क्या चाहते हो? सर मैं ये बोलूं कि सर ये पूछ रही हूँ कि आप थोड़ा बताइए ना नंबर कैसे गेन करें। सर ये बता के आप थोड़ा डरा दिए हैं सर। डराऊंगा नहीं तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, कराना तो पड़ेगा। डराना तो पड़ेगा ना, पढ़ोगे नहीं तो कैसा होगा? मैं इसीलिए कहता हूँ तुम लोग रूम में एक एक ब्लैक बोर्ड और बोझा चौक रखो और घरों बैठ के पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। तुम अगर नहीं करोगे तो उसका उत्तर यही आने वाला है, समझे ना? आई यस सर। हेलो। यस सर। अरे अभी तो सर तुम लोग सर मतलब 82 बच्चे ने पढ़ाई नहीं करे थे लास्ट ईयर। अभी वो सब छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ अभी तो एनाटॉमी का फिंगर तुमने टच किया है, अभी आगे बहुत बड़ा बड़ा है। ब्रेन, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, रेडियोलॉजी भरा है पूरा। वो सब पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो कैसा होगा बोलो, समझे ना? हेलो। यस सर, सही कह रहे हो आप। यस सर सही हाँ, बात। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी तुम लोग यहाँ पे आओगे एक एक ब्लैक बोर्ड और बोझा चौक, चौक चौक। कितना पेपर कहां से लाओगे बोलो? समंदर जैसा कोर्स, चौक और ब्लैक बोर्ड, डायग्राम ड्रॉ करो लिखो। कोई नहीं करते हो तुम लोग, मेरे बात तो मानते ही नहीं हो। सस्ता सुंदर मजबूत ब्लैक बोर्ड और चौक, माना है क्या मेरा बात तुम लोग कभी? इतना जोर से मैं 1 साल से यस बता रहा हूँ। क्या ये सर? सर अभी मेरे तो हमारे मतलब 2 महीने हुए सर, आप 1 साल से कहाँ बता रहे हो? उससे पहले तुम्हारे सीनियर को भी बोल बोल के तो आते हुए 150 बच्चों। सर एक बात बताओ सर, 150 जिनके फिंगर्स छूट गए तो वो आगे की बॉडी कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे? अगर प्रैक्टिस डेली करोगे डेली अगर प्रैक्टिस लिखने का करोगे तो ये पेपर, सुनो बात ये है, ये समंदर जैसा कोर्स होती है तो उसमें आप लोगों को लिखना पड़ता है ना। प्रैक्टिकल इज ए बच्चा ऑफ द थ्योरी। प्रैक्टिकल जो है थ्योरी का बच्चा है, पूरा थ्योरी को ब्रेन में डालना आसान काम है बोलो? इज इट इजी वर्क? तो इसीलिए कहता हूं
जब भी तुम लोग यहाँ पे आओगे, एक बड़ा बड़ा अपना खुद का एक एक ब्लैक बोर्ड और चौक और एक डस्टर लेके आओगे, तो दैट इज द वो बेस्ट तो वे। ठीक है लिखो सर, बट जो और आगे लिखो। पढ़ते हैं ना तो फिर पीछे तो भूल जा रहे हैं ना, उसका क्या करे सर? वही वही दैट इज द रिपीट प्रैक्टिस, रिपीट प्रैक्टिस। फास्टली 100 बार, 10 बार, 12 बार करोगे तो ये रिपीट प्रैक्टिस होगी। तुम ये सोचो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी एनाटॉमी के ऊपर है, मैं अगर 3 महीना छोड़ दूंगा मैं भी तो गधा बन जाऊंगा ना, हो गए कि नहीं? सर आवाज सही बात है सर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद पढ़ के आता हूँ कि नहीं? हेलो, पता नहीं सर, हमें कैसे पता Yes, होगा sir. जब पढ़ के आते हैं? अगर नहीं पढ़ के आता मैं यहाँ पे तुम लोग को कैसे पढ़ाता? सर आपको तो आता है ना पहले से, हमें तो कुछ नहीं आता। अरे गधी, मेरे को भी पढ़ाई करनी पड़ती है, सब लोग भी वही पढ़ते हैं बेटा। हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लर्नर हो गए, तुम लोग अभी न्यू लर्नर हो, बट द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, द सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड यू पीपल एंड मी इज वी बोथ आर लर्नर्स। यू आर ए सर वो न्यूली 82 लर्नर। बच्चों ने बात नहीं मानी मतलब इस लोगों की। अभी नहीं, मैं टॉपिक के पकड़ा, मेरा बात नहीं माने, तो इसीलिए तो मैं तुमको खोल के बता रहा हूं ना, पेड़ी पूरा खोल रहा हूं चाबी। एक ब्लैक बोर्ड लो और 3 तरह का बोझा चौक ले आओ, सस्ता सुंदर मजबूत, ड्रॉ करो, लिखो, पढ़ो, फिर लिखो, पोछो, फिर लिखो, पोछो, फिर लिखो, पोछो। ये दैट इज द ओनली वे, यस सर। समझे? और उसका 4 सर लास्ट टाइम पगड़ी जब ले आना। रिवाइज के लिए सर जब लास्ट टाइम रिवाइज के लिए ढूंढेंगे तो फिर वो कहाँ से मिलेगा हमें? वो तो हम मतलब बस पहुंच चुके होंगे वो पहुंच तो। चुके। तो इसीलिए उसका तरीका है राइटिंग ओनली, और कोई तरीका नहीं बेटा। द सर ओनली कॉपी वे। में होगा तो हम बाद में देख सकते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पे तो गया। देखने से क्या हो जाएगा, देखने से क्या हो जाएगा, उसको ब्रेन में डालना इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा मतलब रिवाइज करना होगा ना? अच्छा रिवाइज इज मोस्ट वो चीज इंपॉर्टेंट। नहीं सर। सर वो तो चलो ठीक है सर, आगे हो जाएगी, बट जो पीछे क्या हो गया जाएगा, उसका क्या करे कहाँ हो सर? गया, कहाँ हो गया, कहाँ हुआ, हुआ तो मतलब वो नहीं। बात नहीं है सर, मतलब अभी तो जो भी होगा देखेंगे। हाँ, अरे तो ब्रेन में डालना ना उसको। एग्जैक्टली उसको ब्रेन में सर्जरी पूरा करना पड़ेगा ब्रेन में। प्रिंट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हाँ, सर सर Anyway, जैसे यहाँ पे सर यहाँ लॉन्ग टर्म। सर हाँ, सर जैसे हाँ, यहाँ घर पे हम लोग आ गए तो हम लोग को थोड़ा पढ़ने में वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जैसे हम लोग हॉस्टल में पढ़ा करते, तो सर उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए कुछ करना नहीं है, घर में ब्लैक बोर्ड चौक है यस सर है। तो उसको बैठ के लिखो, और क्या करोगे? नहीं है सर यहाँ पे। तो खरीद लो मार्केट से जाके, सिंपल सर सा बात मार्केट सर बंद है लॉकडाउन सर। लगा हुआ है सर मार्केट बंद है सर। है। नहीं हो रहा है। सर लॉकडाउन है सर, लॉकडाउन है सर। अरे लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, अरे लॉकडाउन है, ऑनलाइन मंगवा लो यार, ऑनलाइन। ऑनलाइन मंगवा दो। हाँ, ऑनलाइन सर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, लॉकिंग ऑफ मैं नी। तो पढ़ाऊंगा, वो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम लोग को ब्रेन में डालने के लिए ब्लैक बोर्ड चौक लाना पड़ेगा, उसका यही आंसर है। चलो आगे बताओ। लॉकिंग ऑफ द की जॉइंट को हो, रुको, छोड़ो, मेरा कोर्स खत्म करो, हाँ सही आइडिया, यही करना पड़ेगा। मेरा काम खत्म करता हूँ पहले। लॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट व्हेन द फुट इज ऑन द ग्राउंड, locking is called medial rotation of the femur on the tibia during terminal phase of extension of the knee. It is rigid, all the ligaments taut. This is called screw home mechanism. अर्थात फुट अगर ग्राउंड में जब भी है तो फीमर को अगर मेडियल रोटेशन की जाए टिबिया के ऊपर, टर्मिनल फेज ऑफ एक्सटेंशन पे, उसको कहते हैं लॉकिंग। अनलॉकिंग जब भी फुट ग्राउंड पे है
lateral rotation of the femur on the tibia during initial phase of flexion. Unlocking is brought by popliteus. When it is unlocked, it is further flexed by the hamstring muscle. So what is the locking muscle? सोचो. सर वास्टस medialis. Vastus medialis ने पूरा का पूरा चारों quadriceps femoris. हाँ, उसमें से इंपॉर्टेंट होती है vastus medialis. समझे ना? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Which is the unlocking muscle? Very good. So difference between unlock and locking. Medial rotation of the femur on tibia is locking. Medial rotation is locking. Unlocking is lateral rotation of the femur on the tibia. This locking occur at the terminal phase of extension. Unlocking occur initial phase of flexion. Locking muscle is quadriceps femoris. Unlocking muscle is popliteus. Knee is absolutely rigid when it is locked. Knee is absolutely flexed and soft when it is unlocked. In locking, all the ligaments are taut. In unlocking, ligaments are relaxed. ये पॉइंट पूछ सकता है एग्जामिनेशन में. Muscle producing movement. Flexion is mainly by semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris. Accessory flexor, popliteus, sartorius, gracilis, gastrocnemius plantaris. Extension, quadriceps femoris. Accessory extension, tensor fascia lata. Medial rotation, semimembranosus, semitendinosus, popliteus. Accessory medial rotator, sartorius, gracilis. Lateral rotator, mainly biceps femoris. Accessory lateral rotator, gluteus maximus, tensor fascia lata. Range of the motion. Flexion 120 degree if hip is extended, 140 degree if hip is flexed. Extension 5 to 10 degree hyperextension. Medial rotation 5 degree with knee extended, 10 degree with knee flexed. Lateral rotation 30 degree. So at this I am going to end with certain parts of the clinical anatomy. Osteoarthritis, degenerative wear and tear of the articular cartilage, painful movement, limited produce grating, radiograph gritting sensation. Radiograph reveals osteophytes, peripheral dipping of the articular end. Injury to the cruciate ligament is more commonly damaged than the posterior cruciate ligament. Anterior dislocation of the tibia, posterior cruciate ligament injury. Posterior dislocation of the tibia, posterior ligament injury. Hello? Hello? हाँ सर. समझे? हाँ, anterior. Cruciate ligament here. Yes, sir. Tibia pull excessive forward on the femur, anterior draw side, and the tear of the cruciate ligament lead to anterior-posterior mobility, abnormality in anterior-posterior mobility. Anterior cruciate ligament injury lead to anterior dislocation of the tibia. Posterior cruciate ligament injury lead to posterior dislocation of the tibia. Posterior cruciate ligament is torn, tibia pulled excessive backward of the femur. That is called posterior drawer side. Aspiration of the knee joint. The aspiration
The aspiration of the knee joint is called collection of the fluid and swelling front and side of the patella. Patellar tap demonstrate healing of the patella. Aspiration done on either side of the ligamentum patulli. Ligamentum patulli के आजू बाजू में aspiration की जाती है. उसमें 3 ठो बोनी लैंडमार्क मिलता है निडिल इंसर्शन के लिए. पहला है tibial tuberosity, दूसरा है lateral epicondyle of femur, तीसरा है apex of patella. Arthroscopy of the knee joint. It is an endoscopic evaluation, visualization of the anterior of knee joint cavity with minimal disruption of the tissue. This ligament repair or replacement can be performed by using an arthroscopy. Arthroscopy अर्थात एक लेंस डाल के जॉइंट का सर्जरी करवाना, एंडोस्कोपिक सर्जरी. Knee replacement. If the knee is badly damaged by osteoarthritis, an artificial joint consisting of plastic tibia component and metal femoral component is connected to end after removal of the damaged area. Unhappy triad of the knee joint. A combination of injury of the tibial collateral ligament, medial meniscus, then anterior cruciate ligament. So 3 चीज होता है unhappy triad. Medial meniscus, anterior cruciate ligament and tibial collateral ligament that produces unhappy triad of the knee joint. Thank you. Hello? Hello? Yes, sir. With this, I am ending the session. Thank you, sir. Thank you, sir. एक Thank you, रुको, sir. हुआ नहीं. अरे रुको, एक और क्लास से रुको.